ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਤੀਸ਼ ਮਲਿੰਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਆਲ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਸਕੀਪਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ। IIT ਬੰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਡਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਡਾਨ IIT ਬੰਬੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨੋਇਡਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕਿੰਗ ਸਿਜੋਂਗ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੇ। ਇਨ ਅ ਬਿਡ ਟੂ ਮੇਕ ਕ੍ਰੋਸ ਬੋਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਅਰ ਐਂਡ ਚੀਪਰ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਅਰ ਔਰ ਚੀਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ RBI ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ UPI ਔਰ ਪੇਨਾਓ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ। NPCI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਗਰੁੱਪ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ QR ਬੇਸਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੇਬੀ ਨੇ T+1 ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਰੂਟ ਐਰੋਸਪੇਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਸਪੇਸ ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਰੌਕਟ ਇੰਜਨ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ CV ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨਾਲੀ ਖੰਨਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਗੁਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਗੁਨ ਗੁਪਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਗੁਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ। ਵਿਨੋਦ ਕਨਨ CEO ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਾ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ CEO ਵਿਨੋਦ ਕਨਨ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨੇ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕੁਆਡ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੁਆਰਾ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ IAEA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੁਆਰਾ ਨੀਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੜੀਸਾ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਰ ਪੰਪਸ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਕੀਮ? ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 1 DG ਪੇ ਸਖੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਟੂ ਇੰਕਲੂਡ ਐਪੈਕਸ ਆਫ ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ MP ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
वर्ल्ड बैम्बू डे कदों ऑबजर्व किया गया? वर्ल्ड बैम्बू डे सिंपली याद रखांगे 18 सैप्टेंबर ਨੂੰ ऑबजर्व किया गया। अच्छा क्वेश्चन याद रखना बैम्बू सब तो ज़्यादा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ असम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। असम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਡੇ ऑबजर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਡੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ऑबजर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर की प्रिवेंशन के लिए इंटरनेशनल लैवल के उत्ते डे कदों ऑबजर्व किया जाता है? 16 सतंबर को ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज के लिए 216 मिलियन लोग जिस रिपोर्ट के अनुसार 216 मिलियन लोग 6 वर्ल्ड के रीजनस के विचों मूव करनगे 2050 तक। बेसिकली माइग्रेशन की गल की गई है कि क्लाइमेट चेंज करके 216 मिलियन लोगों को माइग्रेट करना पएगा। ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई। ठीक है इन्हों के रिलेटेड स्टैटिक आप किसी होर दिन डिस्कस कर लाँगे। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। विच एडिशन ऑफ मीटिंग ऑफ SCO की काउंसल हैड ऑफ स्टेट्स SCO की हैड ऑफ स्टेट्स मीटिंग 17 सैप्टेंबर यानी कि अज के दिन दुशानबे तजाकिस्तान के ऑबजर्व की जाएगी हाइब्रिड मोड के। बेसिकली की है हाइब्रिड मोड का मतलब पहले तो कि कुछ नेशनस इस पार्टिसिपेट करनगे वर्चुअली और कुछ फिजिकली जाके पार्टिसिपेट करनगे। इंडिया की गल करते हैं इंडिया वालों सुब्रमण्यम जयशंकर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विजिट ते ने दुशानबे तजाकिस्तान मीटिंग के पार्टिसिपेट करने के लिए और हैड ऑफ स्टेट मीटिंग के वैसे जो हैड ऑफ स्टेट मीटिंग है इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करनगे इंडिया वालों वर्चुअल मोड के उत्ते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी अज तो 17 सतंबर को दुशानबे तजाकिस्तान के जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है किन्नवें नंबर की मीटिंग है तो यह 21वें नंबर की मीटिंग है। एडिशन पूछा जा सकता है किन्नवें नंबर की SCO हैड ऑफ स्टेट्स मीटिंग है 21वें नंबर की मीटिंग है। ठीक है जी SCO के 8 मैंबर कंट्रीज़ ने। ठीक है बीजिंग चाइना के हैडकुआटर है। इस इंडिया और पाकिस्तान को रिसेंटली ऐड किया गया 2017 के। ठीक है नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉन्ग विद RMI इंडिया सपोर्ट के नाल मिल के शून्य नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विद कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिकली कि इंडस्ट्रीज तो बनाना बंद कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर्स ने जोड़े वो खरीदना बंद कर देंगे तो की होएगा जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स नू प्रमोट किया जाएगा। ठीक है जो दूसरे व्हीकल्स ने उन्होंने बंद कर दिता जाएगा और जो जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स ने उन्होंने मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और बेचा जाएगा। ठीक है जी शून्य नाम के इनिशिएटिव के अंदर किस द्वारा नीति आयोग 2015 के बनाया गया सी। अमिताभ कांत इसके हैड ने राजीव CEO कह सकते हैं राजीव कुमार इसके वाइस प्रेजिडेंट ने और प्रेजिडेंट कौन होंगे ने प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है जी कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप हाउ मच परसेंट FDI इन टैलीकॉम सैक्टर। ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सी अज के सैशन के इस करके अज का सैशन आप लगा रहे हैं लेकिन कैंसल करना सी सैशन क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हाँ फिर भी आप क्लास इस करके डिस्कस कर रहे हैं न्यूज़ इंपॉर्टेंट ने। हाउ मच FDI टैलीकॉम सैक्टर के अगर FDI कर दी है 100%। क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया डिफेंस सैक्टर के कितनी FDI कर दी है? डिफेंस सैक्टर के 74% FDI कर दी है 49% तो इंक्रीज़ करके। सिमिलरली इंश्योरेंस सैक्टर के भी 49 तो 74 की गई सी। ठीक है रिसेंटली प्रोविडेंट फंड के भी FDI 49 तो 74 की गई सी। और टैलीकॉम सैक्टर के FDI कितनी कर दी है? 100%। कितनी कर दी है? 100%। इंश्योरेंस भी इंश्योरेंस की अगर आप गल करते हैं 74% है इंश्योरेंस के। ठीक है इतने लिखा हुआ है कैबिनेट है डिसाइडेड टू सेट 100% FDI इन टैलीकॉम सैक्टर। इस तो इलावा गौरमेंट 10% स्टेक भी बेच रहे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड याद रखांगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कितना स्टेक बेचा गया गौरमेंट द्वारा? 10%। तकरीबन इस टाइम 77% स्टेक इंडिया को बाकी रह जाएगा 10% बेचने तो बाद।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अप्रूव PLI स्कीम। PLI स्कीम है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अप्रूव की जाएगी फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड ड्रोन इंडस्ट्री। बेसिकली बजट की अगर आप गल करिए बजट के डिस्कस किया कि सरकार PLI स्कीम लेके आएगी 13 डिफेंस सैक्टर के किन्ने सैक्टर्स के क्वेश्चन बनेगा 13 सैक्टर के बजट के गल की गई सी 13 सैक्टर के PLI लेके आएगी। ठीक है और एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका RBI के एग्जाम के क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी अमाउंट की PLI डिसाइड की है तो 1.97 लाख करोड़ 13 सैक्टर के 1.97 लाख करोड़ की PLI स्कीम नू जारी किया जाएगा प्रोडक्शन लिंक्ड पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है और इसी PLI के हुण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रोन इंडस्ट्री नू यूज़ किया गया तो अमाउंट जारी की गई है 26,058 करोड़ 26,058 करोड़ 5 सालों के लिए अगले 5 सालों के लिए अप्रूवल दी गई है। ठीक है जी। अच्छा रिसेंटली टैक्सटाइल्स के रिलेटेड अपना डिस्कस नहीं किया सी अपने बाय मिस्टेक रह गया सी टैक्सटाइल्स के भी PLI जारी की है टैक्सटाइल इंडस्ट्री के 10,683 करोड़। ठीक है इस तो इलावा अच्छा रिसेंटली फेम स्कीम है जो फेम स्कीम के रिलेटेड भी आप डिस्कस किया हुआ फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलैक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप गल करिए तो इस दे विच भी 10,000 करोड़ PLI नू अप्रूवल दी गई सी। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC दे हैड CBIC का हैडकुआटर कमेंट बॉक्स के दसना काफ़ी ईजी है कई बार आप डिस्कस किया है इन्होंने डिक्लेयर किया किस एयरपोर्ट नू कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट कि किहड़े एयरपोर्ट नू कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट का दर्जा रिसेंटली दिता गया है। कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट की होंगे कि वह एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनल लैवल के उत्ते एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकेगा तो यह दर्जा दिता गया खुशीनगर एयरपोर्ट नू खुशीनगर एयरपोर्ट। क्वेश्चन आई थिंक पंजाब दे विच ही पूछा गया सी किसी PPSC के किसी एग्जाम के पूछा गया सी और UPPSC के एग्जाम के भी क्वेश्चन पूछा गया सी UPPCS के एग्जाम के अगर आप गल करिए क्वेश्चन पूछा गया सी कि किस एयरपोर्ट नू यूपी का किहड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा रिसेंटली दिता गया उस टाइम की अगर आप गल करिए तो खुशीनगर एयरपोर्ट नू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दिता गया सी। इस तो इलावा यूपी के हुण 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने खुशीनगर अयोध्या और नोएडा रिसेंटली एडेड ने। इस तो इलावा होर 2 एयरपोर्ट्स ऑलरेडी इंटरनेशनल लैवल के उत्ते यूपी के हैगे सीगे। ठीक है जी। श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट पंजाब दे विच है पंजाब के अमृतसर दे विच। नेक्स्ट है हैड ऑफ टैक्स अथॉरिटी ऑफ ब्रिक्स दी टैक्स अथॉरिटी के हैड कंट्रीज़ द्वारा वर्चुअल मीटिंग की गई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ रेवेन्यू सैक्रेटरी। ब्रिक्स की इस साल की प्रेजेंसी इंडिया लवे है नेक्स्ट साल की प्रेजेंसी चाइना लवे चली जाएगी। ठीक है तो इस साल की टैक्स हैड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ की मीटिंग नू कंडक्ट किया गया। इस मीटिंग इंडिया वालों किसी परसन द्वारा हैड किया गया तो किन्ना द्वारा हैड किया गया रेवेन्यू सैक्रेटरी द्वारा। तो अपना क्वेश्चन है कि रेवेन्यू सैक्रेटरी कौन ने तो इंडिया के रेवेन्यू सैक्रेटरी ने तरुण बजाज। ठीक है जी। बाकी ऑप्शन की अगर आप गल करिए अजय कुमार भल्ला होम सैक्रेटरी ने TV सोमनाथन फाइनेंस सैक्रेटरी ने अजय सेठ इकोनॉमिक अफेयर्स सैक्रेटरी ने और राजीव गौबा कैबिनेट सैक्रेटरी ने। रिसेंटली राजीव गौबा नू 1 साल की एक्सटेंशन भी दी गई सी याद रखांगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसने जीते? इंपॉर्टेंट अवार्ड है किसने जीते? ये जीते भानुमति घीवाला ने। भानुमति घीवाला एक नर्स ने
ਕਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਰਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਿਸ ਡੇ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਰਸਿਸ ਡੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਟੈਟਿਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਡੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਭਾਨੂਮਤੀ ਗੀਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਮਾਇਤਰੀ ਪਟੇਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕਮ ਯੰਗੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਮਾਇਤਰੀ ਪਟੇਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਸ਼ਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2021 ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਓਲੰਪਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ। ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਖੇਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ एड्रेस्ड कनेक्ट करो 2021 टूवार्ड्स इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटीज़। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया कनेक्ट करो 2021 टूवार्ड्स इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडियन सिटीज़ इवेंट। इस इवेंट नू किस द्वारा एड्रेस किया गया, किस मिनिस्टर द्वारा? तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी को है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री किन्ना लभी है? हरदीप सिंह पुरी दे कोल है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देख रहे हैं ये, और यूपी तो राज्य सभा MP ने यूपी तो। इस तो इलावा अगर गल करते हैं नितिन गडकरी लवे अगर बेसिकली गल करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन्होंने 17th इंडिया USA इकोनॉमिक समिट में होस्ट किया, एड्रेस किया है बाउंसिंग बैक रेजिलिएंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19। बाउंसिंग बैक रेजिलिएंट रिकवरी पाथ पोस्ट कोविड-19 इस स्कीम नू इस समिट नू किन्हां ने एड्रेस किया? नितिन गडकरी ने किया। 17वें नंबर का एडिशन है इंडिया USA का। ठीक है, बेसिकली अगर वैसे भी अगर आप गल करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी नू अप करने के लिए काफ़ी वड्डा रोल है USA का काफ़ी वड्डा रोल है। ट्रेड सैक्टर के USA काफ़ी ज़्यादा, या होर भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के भी USA का काफ़ी वड्डा रोल है इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड MOU with which country for cooperation in the field of disaster risk reduction and management। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए और मैनेजमेंट के लिए MOU साइन किया गया इंडिया द्वारा किस कंट्री के नाल? तो अपना आंसर होएगा इटली। किस कंट्री के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया? इटली के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है जी, इस तो इलावा दो होर इंपोर्टेंट न्यूज़ ने। 7th फॉरन ऑफिस कंसल्टेशंस, 7वां फॉरन ऑफिस कंसल्टेशंस इंडिया और चिली दे विच ऑर्गेनाइज की गई। कित्थे? सैंटियागो दे विच। सैंटियागो चिली की कैपिटल है। बेसिकली चिली कैपिटल सैंटियागो, करंसी पीसो चलती है। तो इंडिया और चिली की फॉरन ऑफिस कंसल्टेशंस मीटिंग नू 7वें एडिशन नू ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया वालों रीवा गांगुली दास ने पार्टिसिपेट किया जो कि सैक्रटरी ने ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे। सैक्रटरी ईस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे। वैसे अगर गल करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दे
सैक्रटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने, हर्षवर्धन श्रिंगला। 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। क्वेश्चन डायरैक्टली सीधा वन लाइनर दे विच बन सकता है। पीसफुल मिशन एक्सरसाइज किस कंट्री ने होस्ट की है? पीसफुल मिशन एक्सरसाइज है जो रशिया द्वारा होस्ट की गई है, ओरेनबर्ग रीजन ऑफ साउथ वैसट रशिया। 13 तो लैके 25 सप्टैंबर ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ऑर्गेनाइज किया जाए किथे? ओरेनबर्ग रीजन रशिया दे विच। पीसफुल मिशन बेसिकली SCO कंट्रीज़ की एक्सरसाइज है। SCO कंट्रीज़ की एक्सरसाइज है, ये किते भी सुनो नहीं मिलेगा, नोट कर लियो, इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ई रिसिप्ट 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है टैक्स पेमेंट्स के लिए? ई रिसिप्ट 2.0 ई रिसिप्ट 2.0 टैक्स पेमेंट के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। केड़ी स्टेट द्वारा, केड़ी सरकार द्वारा तैयार रखांगे, इसनों लॉन्च किया गया उड़ीसा द्वारा। केड़ी सरकार द्वारा? उड़ीसा द्वारा। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं टैक्स पेमेंट के लिए अपने अथॉरिटी डिस्कस कर ली सी, CBIC इंटरैक्ट टैक्स एंड कस्टम और CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स। इस तो इलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने। गुजरात सरकार ने, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप मोदी फॉरेस्ट इन मेंसना डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ गुजरात। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उत्ते मोदी फॉरेस्ट सैटअप किया जा रहा है। मोदी फॉरेस्ट के विच 2000 ट्रीज़ लगाए जाएंगे। 2000 ट्रीज़ किथे? मेंसना डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गुजरात के विच। ठीक है जी, अज के दिन जन्मदिन है 17 सप्टेंबर। 8th एडिशन ऑफ इंडियन आर्मी चीफ कॉन्कलेव, इंडियन आर्मी चीफ कॉन्कलेव ऑर्गेनाइज की जाएगी न्यू दिल्ली के विच। क्वेश्चन दे विच एडिशन पूछा जाएगा। इंडियन आर्मी चीफ कॉन्कलेव मीटिंग रिसेंटली न्यू दिल्ली के विच ऑर्गेनाइज की गई। इसका किनवा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका 8वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज़ अनाउंसड टू सैटअप अ टैक्सटाइल पार्क। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा टैक्सटाइल पार्क अनाउंस किया गया भद्रक उड़ीसा के विच। भद्रक उड़ीसा के विच एक टैक्सटाइल पार्क कौन लगाएगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लगाएगा। कदों तक? 2024 तक। 2024 तक इसनों सैटअप किया जाएगा। ठीक है जी, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन थोड़ा छोटा रखा अज दे दिन दे लई, एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हाँ। आई होप तुम समझोगे। सैशन को काइंडली लाइक एंड शेयर जरूर कर दियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।